Today we will be like moving forward. I think last time I have given some question, right? I have given one question. So what about the answers? You had to find the skewness of the one of the yes skewness of one of the data which I have given. किसी ने किया वो? हेलो स्क्यूनेस निकालना था एक क्वेश्चन का किसी ने किया है फॉर्मूला लगा के यस और नो कुणाल अभी डन कुणाल वर्मा वर्मा he has not done it okay बबीता निखिल have you done skewness का फॉर्म मैंने sorry sir I didn't do that why what's the reason फॉर्मूला लगा के रिकॉर्डिंग्स में आपको फॉर्मूला दिख गया होगा that formula you can use what is the reason behind not doing अच्छा एक मिनट लेट्स मी डू सेंट्रल लिमिट थ्योरम ओके तो लेट्स स्टार्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम is a fundamental concept in statistics that describes the behavior of the distribution of sample mean. It states that given a sufficiently large sample size from a population with any shape distribution, finite means, the distribution of the sample means will approximate a normal distribution. Balka. आपका डेटा अगर बहुत ज़्यादा मे बी यू कैन से कि अगर एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है ठीक है तो स्टिल यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो okay so what is the key point of central limit so first of all sample size
Sorry, sir, my network is not working, Amit. Hmm. Sample size. The theorem applies when the sample size n is large enough. A common rule of thumb is n should be greater than 30. जब n should be greater than 30 to apply this central limit theorem. Although this can vary depending upon the original distribution. Independence होनी चाहिए. The sample should be independent of each other. Finite mean and variance. The population from which the samples are drawn should have a finite mean and variance. तो आपका डेटा कैसा भी है, पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, या अनइवन या वेरी इवन, हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे छोटे छोटे और उसका फिर हम लोग बनाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे करेंगे इसको? Normality. The distribution of a sample means will be approximately normal, even if the population distribution is not. तो दिस इज द रियल टाइम एप्लीकेशन. इसका जो करने के फायदे ये होते हैं कि आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल इवन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट. तो आपका जो डेटा अगर अनइवन है लाइक दैट, तो इसको अप्लाई करने के बाद इट विल बिकम वेरी नॉर्मल. जस्ट निखिल, आई थिंक यू आर आस्किंग समथिंग. Mean of the sample distribution. The mean of the sample distribution sample means will be equal to the population mean. तो पॉपुलेशन का जो मीन होता है जो, और आपके डेटा का जो मीन होता है, that will become equal. Standard error. The standard deviation of the sample means known as the standard error will be sigma by under square of, we will apply in the real data where sigma is the population standard deviation and n is the sample size. Okay, example दिखाता हूँ. Imagine you are measuring the height of the population of adult. The distribution of height might be normal, it could be skewed. तो थोड़ा आपका ग्राफ skewed हो सकता है. For example, like this. However, if you take many samples of height, each of size n, and then calculate the mean height of each sample, the distribution of these sample means will tend to follow a normal distribution. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर डायरेक्ट डेटा का बना दिया तो मे बी स्क्यूड अगर आ गया. ठीक है, कुछ डेटा है आपके पास, मे बी आप कह सकते हो कि थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ इसमें रोज हैं एंड यू हैव क्रिएटेड दिस, तो यू गॉट स्क्यूड ग्राफ. पर एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका कि आप उसमें से 30 डेटा लो, 30 सैंपल, उसका मीन करो. ठीक है, यू फाइंड आउट द मीन ऑफ इट. तो उसका जो मीन आएगा, वट एवर द मीन इज, उस मीन का आप अगर ग्राफ बनाओगे तो दैट विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. एक तो डायरेक्ट बनाना, second thing is you make it with taking some small samples of size 30.
So we can easily convert this. तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो मैं एक बार इसको रियल डेटा पे आपको करके कोशिश करता हूँ. जस्ट 1 मिनट. ये रहा आपका कोड. कोड पहले मैं समझा देता हूँ एक बार. यस आरती. यस आरती बोलिए. यू रेज योर हैंड. Okay. So first of all, import all the necessary libraries like NumPy, Pandas, Seaborn. These both are for making graph. These both are for the data. तो एक हमारा इनबिल्ट डेटा होता है आयरिस डेटा. तो ये डेटा कैसा होता है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ. सब कुछ कमेंट आउट करके. किसको इस डेटा के बारे में ऑलरेडी मालूम है? ओके, वेरी नाइस. बेसिकली इसमें सैपल विथ बेसिकली इसके अंदर फ्लावर्स का डेटा है. ओके, ये देखो. जैसे फ्लावर्स हमारे पास होता है, ठीक है. तो व्हाट वी यूज टू हैपन कि उसका एक होता है विड्थ ऑफ द सेपल. बेसिकली ये पेटल होता है, ठीक है. इसको पेटल बोलते हैं. पेटल लेंथ और पेटल विड्थ. ये पेटल आपका विड्थ हो गया, और जो ऐसे होता है दैट इज द पेटल लेंथ. इसी फ्लावर का एक और पार्ट होता है विच यू कैन से दैट इज सेपल. ठीक है, तो उसके भी लेंथ और विड्थ होती है. बेसिकली मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, इसको इजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि अब इसी फ्लावर में 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, 3 टाइप. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा काम नहीं है वैसा. एक सेटोसा बोल सकते हो, एक वर्जिनिका,
Which is the third one? Anybody remember? टारगेट वैल्यू भी मैं देख लेता हूँ, स्पीशीज। हाँ, वर्सिकलर, राइट। तो सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका, तीन टाइप के कलर, तीन टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एंड सब कुछ डिपेंड करता है ये लेंथ ऑफ द पेटल, लेंथ ऑफ द विड्थ, पेटल की विड्थ पे। जो ज़्यादा होता है मे बी दे कॉल इट सेटोसा, थोड़ा कम होता है वर्सिकलर, और सबसे कम होगा तो वर्जिनिका। ठीक है, दिखते सब सेम ही है। जस्ट लाइक अ कैट, अगर कैट बहुत बड़ी है तो वी कॉल इट मे बी प्यूमा। और जो हमारी पेट, कुछ पेट कैट होती हैं जो उसका साइज बहुत कम होता है, कुछ होती हैं प्यूमा, और कुछ जो बहुत बड़ी होती हैं वी कॉल इट चीता, और जो भी है। तो दिखते एक ही जैसे हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द साइज, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें व्हाट वी आर डूइंग कि किसी एक कॉलम को पकड़ लिया हमने, सैपल लेंथ। ठीक है, और उस सैंपल लेंथ का हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैंपल निकाल रहे हैं उसमें 30-30। ठीक है, अगर मैं उसका सबसे पहले सैंपल लेंथ का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। या सी, ये देखो आपका डेटा थोड़ा अनइवन है, राइट, थोड़ा सा। अब इसी को इवन करना है, अनइवन डेटा को इवन करना है। कैसे करेंगे? तो यू सेव्ड योर दिस सैंपल लेंथ कॉलम इनटू डेटा वेरिएबल, और यहाँ पे हमने बोला कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 1000। तो आप देखोगे 1000 डेटा का बेसिकली ये है हमारा। वी हैव 1000 रोज, और उसी 1000 में से रैंडमली हम 30-30 पिक करेंगे। ठीक है, 30-30 पिक करेंगे, उस 30 का मीन, मीन एक लिस्ट में सब कुछ सेव करेंगे हम। ठीक है, आपका डेटा पूरा 1000 का है, उसमें से स्मॉल पिक किया हमने 30 का, और इसका मीन निकाला। ठीक है, इसका मीन कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, और इसका 12 हो गया, एक 30 का और निकाला आपने, और उसका मीन हो गया मे बी 14। ऐसे ही सबके मीन निकाल के आपके पास एक पूरी लिस्ट बनेगी, 12 डेटा, 14 का, ऐसे लॉट ऑफ। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मे बी इट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दिस इज द क्रक्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। तो दे आर रनिंग फॉर लूप 1000 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे डेटा में से, जो कि हमारा कंप्लीट डेटा था, दैट दिस वन, वहाँ से 30-30 पिक हो रहा है, 30-30, राइट। सैंपल साइज आप देख सकते हो 30, कोई भी 1000 में से 30 पिक हो रहे हैं।
इट्स सेव्ड इन अ सैंपल और उसका मीन निकाला जा रहा है और उस मीन को इस हमारे लिस्ट में डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये इटरेशन बहुत बार होगी, 1000 टाइम्स होगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ये लिस्ट का डेटा था सैंपल मीन्स, इसका फिर हम लोग हिस्ट प्लॉट बना के देखेंगे। देखो सैंपल मीन्स, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। शुरू में ऐसा बना था। देखो डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉर्मल हुई कि नहीं हुई। राइट। पहले थोड़ी सी नॉर्मल थी पर इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं थी। मे बी आई कैन सेट सम मीन्स, कितना डेटा, 1000 डेटा है तो मीन्स वी कैन ट्राई 30। एवरी bins will contain 30 data. Yes, see, very uneven data, right? आप बिन्स बढ़ा दोगे, इफ यू आर डूइंग 100 तो इतना पता नहीं चलेगा आपको। बाहर का विड्थ बढ़ जाता है इससे, तो इतना पता नहीं चलता। जितना कम करोगे उतना देखो पता नहीं चलेगा। और जितना आप इसको बढ़ाओगे बिन्स की, उतनी बिन्स विल कंटेन लेस डेटा। जैसे अभी हमने बोला कि एक बिन्स 10, मतलब कि एक बार में कितना डेटा होगा, जैसे 10 होगा। 3 4 6 7। बिन्स मैंने 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 बार्स बने, यहाँ देखो। तो ईच बार इज कंटेनिंग ऑलमोस्ट हाउ मच, 100 डेटा। आप अगर बोलोगे कि मुझे 100 बार्स बनाने हैं तो यहाँ पे देखो फिर थोड़ी एक्यूरेसी डेटा की कम हो जाती है। ये देखो, और नॉर्मल तो कहीं से नहीं है ये। सैंपल मीन्स ऑफ द सैंपल लेंथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट। यू कैन ट्राई ऑन एनी ऑफ द डेटा इफ यू हैव। Okay, I'm giving you one more data. You people have to do that. Uh, आपको इतना सारा डेटा है यहाँ पे। ओके, कार क्रैशेज, डायमंड डॉट्स, लाइट्स। चलो टिप्स डेटा ही ले लो आप।
यस, ये रहा आपका डेटा। टिप सेटा, लोड इट, ये रहा आपका टिप, ठीक है। टिप्स का, इस टिप्स कॉलम का आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। पहले मैं देख लेता हूँ अनइवन है या इवन है। बाय द वे अनइवन ही होगा जहां तक मैं जान रहा हूँ। टिप, यस अनइवन है, ठीक है। तो एनीबडी डू दिस वन, इस डेटा में हमारे पास, यस, ट्राई योर हैंड। ऐसे आप लोड कर सकते हो अपने डेटा को, आपके पास डेटा आ गया, डेटा का ये रहा कॉलम, इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट करके देखो। आपको कोड देखना है पिछला कैसे बनाया तो आप देख सकते हो। ये फॉर लूप रन करनी है आपको इस लिस्ट में। तो फटाफट कोई बनाओ ग्राफ और शो में। आई एम ऑन माई साइड, आई एम वर्किंग एज एन सुपरवाइजर, सॉरी। फोन से अगर अटेंड कर रहे हो तो आप कोडिंग कैसे करोगे आप फिर? थोड़ा टाइम निकाल के अपना सिस्टम भी ओपन करिए और उससे क्लास अटेंड करिए। नो, इट्स योर लॉस। क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और कोड आपको पूरी दिख नहीं रहा तो हाउ विल यू? एनीबडी एल्स? और स्टूडेंट के कभी रिप्लाई आता ही नहीं। आरती, अंकुर, अनु, अर्चना सुंदर, आशीष झा, जयश्री, कुणाल वर्मा, रॉबिन सिंह, शुभम, सोनू, उमेर। आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप यहाँ पे। अगर सिर्फ देखने से कोडिंग आती तो हर कोई कर लेता। So from where we are using data? Data is inbuilt. I will I will share you mine. Karma. This is how you can load the data. यहाँ पे लिखा हुआ है import Seaborn and then do this.
दिस इज हाउ यू कैन इम्पोर्ट। हाँ, डाउनलोड करो या इट इज इनबिल्ट। फॉर लूप कोड दिस वन। हाँ, कैगल भी है, वेटर टिप्स डेटा सेट के नाम से। इससे बढ़िया आप यहाँ पे इनबिल्ट यूज कर लो, सबसे बेस्ट है। कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सबसे इजी है। ना कुछ डाउनलोड करना, ना कुछ। तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। हाँ हाँ, मालूम है। वी नो इट। मालूम है, मालूम है, बहुत सारा डेटा है वहाँ पे। लगता है अमित, यू आर हेयर टू स्पॉन्सर द कैगल। ओ वाह। काउंट। दिस इज नॉर्मल। लाइक दिस इज कन्वर्टेड वन और द ओरिजिनल वन? ओके। वेरी नाइस। सॉरी सर, बट नाइट पर ही स्टडी करवाता हूँ। ओके। ऑलराइट, सो देखो, निखिल हैज मेड इट, so he converted into the normal. Very nice. From the chat you can see. अरे अमित, you are here to give the excuses in the chat और क्या? Okay, let's move to the next topic now. उसके बाद let me do this टी टेस्ट। देखो, टी टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट भी हमारा होता है, और क्यों यूज होता है आई विल टेल यू। डेटा कुछ भी ले रहे हैं, सैंपल डेटा या कहीं स्पेसिफिक डाउनलोड किए। मैंने टिप्स डेटा के लिए बोला था वैसे तो। अब कैसे इंपोर्ट करना है उस डेटा को सीबॉन से, मैंने कोड ऊपर लिखा भी है, इंपोर्ट pandas एंड ऑल दैट, और उसके बाद। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू टी टेस्ट। इज जस्ट ओके, व्हाट इज टी टेस्ट?
T-test is a statistical test used to determine if there is a significant difference between the means of two groups. आपके पास दो ग्रुप हैं, ठीक है। आपको पता करना है कि उसमें से बेटर कौन सा है। कोई भी दो ग्रुप है, उसका मीन कुछ और है, दूसरा आपका डेटा है उसका मीन कुछ और है। आप कैसे पता करोगे कि विच वन इज बेटर? तो इन दिस सिनेरियो व्हाट वी कैन डू कि फॉर एग्जांपल इफ सचिन इज प्लेइंग एंड सहवाग इज प्लेइंग cricket, yeah, they have scored 52, 61, 72, and he has scored like 70, 60 and 190. So अब कैसे पता करेगी कि इन दोनों में से कौन बेटर है, किसका एवरेज बेस्ट है? मतलब क्योंकि यू कैन सी द स्कोर्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ तो इट इज विजिबल कि सहवाग ने अच्छा खेला, बट सपोज maybe 1 century I will add here and 140 I will add here. Then it's difficult now, right? तो ऐसे दो ग्रुप में अगर वी हैव टू चेक कि विच इज वन इज बेटर, तो उसके 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 लिए एक हमारे पास आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट एक्चुअली व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 30, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रन्स का, उसमें सैंपल साइज बहुत कम है, मे बी 4 ही लिया था मैंने। तो इन सिनेरियोज में हाउ टू कंपेयर कौन बेस्ट है, कौन सा ग्रुप बेस्ट है? तो टी टेस्ट इज बेस्ट। हमेशा याद रखना, टी टेस्ट इज ओनली फॉर द सैंपल साइज वेयर इट इज लेस देन 30। याद रखना ये। हाइपोथेसिस टेस्टिंग दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, वो डिपेंड करता है हमारे सैंपल साइज पे, कितना हमारे पास सैंपल साइज है। 30 से लेस देन है तो टी टेस्ट होगा, 30 से ग्रेटर है तो बताऊंगा कौन सा होगा, दूसरा होगा। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट यहाँ पे होते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट, लाइक टेस्ट वेदर द मीन ऑफ द single sample is significantly different from a known or hypothesized. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे वन सैंपल है, अब यहाँ पे भी कंपैरिजन है, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर एक डेटा दिया, इसका भी कुछ मीन होगा और इस पूरे पॉपुलेशन का भी कुछ मीन होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए दिस वन। इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया सचिन सहवाग का, कंपेयर द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, तो दे आर डिफरेंट और सेम। तो सचिन सहवाग का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, जहाँ पे टू ग्रुप है हमारे पास। पेयर्ड सैंपल डेटा कंपेयर द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स टू determine if there is a significant difference between them. Compare the mean of a two related group, compare the mean of two independent group। यहाँ पे रिलेटेड ग्रुप्स की बोल रहा है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइक टोटली डिफरेंट, एंड यहाँ डिपेंडेंट रिलेटेड, यू कैन से नॉट डिपेंडेंट, रिलेटेड। तो इसमें भी हमारे पास पी वैल्यू का, पी वैल्यू जैसा चीज है। Paired is for the before and after type. Paired one, like this one means related to group if there is a significant difference between the related group. Related group. Pair is for the before and after. Before after, okay, you are saying before after related. Yes, that can also be considered.
बट रिलेटेड ग्रुप हो तो ज्यादा बेटर है, जैसे सचिन सहवाग का, मे बी आई थिंक दिस सूट्स बेटर ऑन दिस। हाँ, वो तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी, यू टेक एनी कंपनी। ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट। तो इसमें हाइपोथेसिस में वी अगेन टेक द टू केसेस, स्टेटमेंट लेते हैं कि फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन। मीन्स का, ठीक है, पहला हम लोग मान के चलते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और दूसरे स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। ठीक है, हम इन दोनों को सपोर्ट और नेगलेक्ट करने के लिए ही सारी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, पी वैल्यू निकालेंगे, टी टेस्ट निकालेंगे, दोनों चीज निकालेंगे। उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला करने से पहले कुछ एजम्पशन होती है हमारी, जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और डेटा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सचिन सहवाग दोनों अलग हैं, ऐसा नहीं कि सचिन ने नहीं मारे तो सहवाग ने भी नहीं मारे, ऐसा रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। ओके, इंडिपेंडेंट है दोनों। और इक्वल वेरिएंस, फॉर independent two sample t test the variance of two groups should be equal। तो वेरिएंस यहाँ बोल रहा है इक्वल हो या मे बी अ लिटिल बिट, थोड़ा सिमिलर हो। ओके, दिस थ्री थिंग्स वी कंसिडर कि होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन और सैंपल की बीच में अगर आपका कनेक्शन, आपको करना टी टेस्ट निकालना है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, जहाँ पे एक्स मीन हो गया, और म्यू हो गया पॉपुलेशन का मीन, एस हो गया हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, एन हो गया सैंपल साइज। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। और इंडिपेंडेंट टू सैंपल, अलग अलग सैंपल दो हैं, तो आप x1 x2 लोगे, सैंपल मीन्स ऑफ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैंपल मीन्स दो ग्रुप्स के, और S1 S2 यहाँ पे सैंपल वेरिएंस, यहाँ पे सैंपल वेरिएंस है, और n यहाँ पे सैंपल साइज। इजी है बहुत, फॉर्मूला आपको बस एक बार याद देखना है। पेयर्स पेयर्ड हैं, इफ दे आर रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे बस द मीन डिफरेंस बिटवीन द पेयर्ड अपॉन एस डी इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस, एंड सम इज द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है इसमें, मैं दो ग्रुप में यहाँ पे एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ आपको। पहले import a t test function, और वी हैव डन रैंडम सीड जीरो। रैंडम सीड इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी रैंडम डेटा उठाए उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न हो। ठीक है, रैंडमनेस भी बहुत तरीके की होती है, क्योंकि आपका डेटा हर बार जितनी बार रन करोगे कुछ ना कुछ और दूसरा दूसरा आता रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रैंडम सीड पुट कर देते हैं। रैंडम सीड कोई और डिफाइन कर सकता है इसका मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है रैंडम सीड का मतलब? ओके, तो np.normal.random.normal, हमने एक ऐसा रैंडम रैंडम डेटा, रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर, नहीं नहीं, रैंडम नंबर जनरेटर तो ये है। रैंडम सीड मीन्स डेटा शफल नहीं हो रहा, हमने रैंडमली डेटा चूज किया है। नहीं नहीं नहीं, इट इज यूज फॉर जनरेट प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर। देखो होता क्या है ना कि सीड में व्हाट हैपेंस कि योर डेटा विल बी रैंडम, बट इट विल बी ऑफ वन पैटर्न। ठीक है, हाँ बबून।
शुभम. हम्म। Yes, what happened? Yeah, शुभम. जैसे आप कहीं भी गए अपने घर से बाहर तो आपने देखा कि, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट. आप घर से अपने बाहर निकले और यहाँ पे खड़े हुए आपने देखा कि यहाँ पे शॉपकीपर है, यहाँ पे आपका टैक्सी ड्राइवर, यहाँ पे आपका बस ड्राइवर. ठीक है, अब आप कल आओगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको ये यहीं मिले. राइट. आपको ये यहाँ मिल सकता है. आपको आपको टैक्सी ड्राइवर लिटिल बिट यहाँ मिल सकता है, और मे बी बस ड्राइवर आपको इधर मिल जाए, कोई पता नहीं. ठीक. रैंडम हो रहा है फिर भी. अब देखो रैंडम सीट में ये फायदा होता है ना कि आप क्या करते हो कि आप कहोगे रैंडम तो निकालो पर उसी स्टेट का. मतलब आपने बोल दिया रैंडम सीड एक ही पैटर्न का, 0. तब क्या होगा जब आप दोबारा रैंडम निकालोगे तो जो आपको जिस टाइम पहली बार आपने रन किया था उसी जगह पे ही आपको दूसरा डेटा मिलेगा. ठीक है. ये होता है रैंडम. मतलब रैंडम है पर उसी उसी जैसे जनरेट हो रहा है जैसे आपको फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ था. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को हर बार डेटा यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ना मिले. अगर मैं ये ना करूँ तो हर बार ये अलग डेटा जनरेट करेगा और अलग वैल्यू जनरेट करेगा. कभी ये कभी हमारी नल वैल्यू ट्रू हो जाएगी, कभी फॉल्स हो जाएगी, कभी ट्रू हो जाएगी, कभी फॉल्स हो जाएगी. दैट्स वाई. ठीक है, रैंडम तो निकाल रहे हैं पर उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न हमने स्टेट पिक कर रखी है. ठीक है, तो एन पी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, नॉर्मल डेटा यहाँ जनरेट होगा वो भी रैंडमली. हमने बोला लोकेशन 50. लोकेशन 50 मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. आज हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 20 पॉइंट्स निकल के आएंगे, 20, जिसका एवरेज होगा 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 10. देखो यहाँ पे सारा लिखा है मैंने आपके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, ऐसे ही 2 ग्रुप जनरेट करोगे आप. ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये सचिन के नंबर, ये सहवाग के स्कोर्स. इसलिए बोला था डेटा शो कर. हम्म. ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गए. ओके, आपने दोनों दोनों ग्रुप्स डाले अपने टी टेस्ट के अंदर और इट विल रिटर्न यू टी स्टैट और पी वैल्यू. दोनों देगा, टी टी टेस्ट का वैल्यू और आपका पी वैल्यू. व्हाट इज पी वैल्यू, एनीबॉडी? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पी वैल्यू? देख रहा हूँ, देखता हूँ आपने पिछला कुछ रिवाइज किया है कि नहीं किया है. व्हाट इज पी वैल्यू? हेलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, हाँ ये बहुत सही. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग भी बोल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नल वैल्यू ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज द पी वैल्यू. अमित सिंह इज सेइंग 0.5. आपने तो पी वैल्यू का एक एक पैरामीटर दे दिया, आपने तो थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी. वो नहीं चाहिए, डेफिनेशन चाहिए. प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होता है, स्टैट्स मेजर्स दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस. हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाँ राइट, करेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस आउटलायर्स के लिए. यार आउटलायर्स के लिए तो नहीं होता वैसे. आप पी वैल्यू और जेड स्कोर आप बिल्कुल मिक्सअप मत करिए.
अमित, दोनों मिक्सअप कर दिया आपने। ठीक है, पी वैल्यू एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर पी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब इट इज सपोर्टिंग नल हाइपोथेसिस, अगर बहुत कम है तो इट इज नॉट सपोर्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू रखेगी 0.05। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा आती है तो नल अपनी नल हाइपोथेसिस हम लोग रखेंगे, हम बोलेंगे कि दोनों के ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस नहीं है। और अगर हमारी वैल्यू इससे छोटी आ गई तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। पी वैल्यू हमारी क्या आई है, लेट मी रन इट। रन किया था मैंने और यहाँ पे हमारी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई थी 0.04। पी वैल्यू आ गई 0.9। अच्छा अब बताओ 0.9 के केस में क्या होना चाहिए, देखो मैं हाइड कर दूँ। यू पीपल आर वेरी क्लेवर। हाइड नहीं हो सकता अब। 0.9 के केस में क्या होना चाहिए, हल नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और फेल, लाइक रिजेक्ट। रिजेक्ट नल। आपने उल्टा बोल दिया उमेर। यही तो कंफ्यूजन है। 0.9 बहुत बड़ी वैल्यू है 0.05 से, पूरा सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो नल वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होगी। इस पे मत जाओ, जो लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है, देखो मतलब ध्यान से पढ़ो उसको। हाँ जी, एक्सेप्टेड है। यहाँ पे लिखा है फेल टू रिजेक्ट, रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी वैल्यू आ चुकी है आपकी पी। और पी वैल्यू बड़ी आ गई है, इसका मतलब क्या है, द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो नल हाइपोथेसिस बोलता था कि इक्वल है, और यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सचिन सहवाग दोनों साथ, दोनों के स्कोर्स आप बोल सकते हो कि बराबर ही बराबर है। ये देखो 67 स्कोर, 54, फ्लोट वैल्यू पे ध्यान मत दो। 54 रन, 59 रन, 72 रन अगर ऐसे मारे हैं 20 मैचों में इन्होंने, 20 मैचों में इन्होंने। तो अगर आप दोनों कंपेयर करोगे कौन अच्छा खेला है, तो इसमें बता रहा है कि दोनों ने इक्वल तरीके से खेला है। ऑलराइट। हाँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पी वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, पर आप क्लियर कर लो। पी वैल्यू अगर छोटी होती तो बोलता कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट, डिफरेंस इसमें आ गया, ऐसे बोला डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वेरी इजी। अब नेक्स्ट सेशन में मैं करूंगा जेड टेस्ट और अनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग तो थोड़ी सी डेटा साइंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा थोड़ा सा और मैथमेटिकल पोर्शन होगा वो करेंगे, उसके बाद विल मूव टू द दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, आफ्टर दैट विल टेक सम रियल डेटा एंड विल बी आंसर अकॉर्डिंग टू द डेटा साइंटिस्ट। फाइन। So I would like to wrap up the session right now because we have some time, but it will. Sir, how can we remember the formula? See, formula remember करने की जरूरत नहीं है, आप अपना एक नोट्स बनाओ, जो जो जैसे मैंने कोलैब में नोट बना रखा है। ठीक है, मुझे कोई भी एल्गोरिथम देखनी है, आई विल कम टू दिस एंड सी द फॉर्मूला। धीरे धीरे आप करते रहोगे तो इट विल मे बी एक फॉर्मूला 20 बार करना पड़ेगा आपको, पर याद हो जाएगा। ठीक है, कोलैब का लिंक चलो मैं अपना दे देता हूँ। मैं अपना नहीं दूंगा वैसे आपको, क्योंकि इफ आई विल गिव यू, यू पीपल विल नॉट राइट एनीथिंग बाय योरसेल्फ। आपको लिखना है तो अपना नोट्स खुद बनाओ वीडियो से, आपको बना बनाया मिल जाएगा, तो यू विल नेवर मेक इट। नहीं दूंगा ये वाला, वीडियो से आप खुद बनाओ देख के। सिंपल, अगर गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च वगैरह आप भी करो ताकि आपको भी थोड़ा सा बैठे बैठाए अगर सब कुछ मिला। ओके, तो आई वांट टू रैप अप द सेशन नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय स्टूडेंट्स, विल मीट यू नेक्स्ट।